Hello dear students, hope that you all are fine, and today I am going to discuss about existence of derivative. Earlier we have discussed about what is the definition of derivative from first principle, and then discuss about its geometrical interpretation. What was the geometrical interpretation? Geometrical interpretation of f dash x or dy by dx at any point represent the slope of the tangent at that point. Okay, slope of the tangent at that point. That means उस पॉइंट में एक यूनिक टेंजेंट मिलेगी और उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स होगा. अगर पॉइंट पर्टिकुलर हो जाए तो पर्टिकुलर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, एफ डैश एक्स एफ डैश ए. दिस इज द डेफिनेशन फॉर द फंक्शन टू दैट इज definition of f dash x at any point in its domain, and this is the particular point where a is a particular point. A is what? A is belongs to what? Domain of the function. It is a particular point. दैट मीन्स ये कार्व ऐसा मिलेगी आपकी, इसका मतलब है आप फंक्शन में कार्व ऐसा मिलेगी. दिस इज़ द पॉइंट, सपोज दिस इज़ द पॉइंट ए इन द डोमेन, एंड उसके हिसाब से वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ ए होगा, एंड दिस पॉइंट विल बी ए कोमा एफ ए. दिस इज ए पॉइंट ऑन द कार्व, एंड ऑन दैट कार्व यू आर गेटिंग ए टेंजेंट, एक टेंजेंट मिलेगी. ओके, और उस टेंजेंट का एक स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा, थीटा होगा, and theta is also unique, and thus tan theta is equal to what? That tan theta equal to what? F dash a. That tan theta equal to what? F dash a. This is the meaning of F dash a. Okay, F dash a means what? There is a equal to this, means कोई भी एक पॉइंट में अगर आप यूनिक टेंजेंट मिले तो आप कह सकते हो दिस इज एफ डैश ए एंड इट इज़ एग्जिस्ट. इट इज़ क्या है, एग्जिस्ट. उस एग्जिस्टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. First we reduce this particular definition in another form. So you see a plus h is a variable here. So a plus h, suppose if I take a plus h is equal to suppose x, हमने मान लिया, ठीक है. It is a because it is a not a fixed quantity. A is fixed but h is not fixed. So therefore a plus h is a variable quantity and which is equal to what, x. Now h tends to 0. अगर h 0 किया जाए, h को वैल्यू अगर 0 किया जाए तो x का वैल्यू क्या होगा, x is approaches to what, a हो जाएगा. x is approaches to what, a. And finally what will be your expression, ये f dash x क्या होगा, f dash x is equal to f dash a is equal to what, limit h tends to 0 means x tends to a. Now we write a plus h is equal to what, x, so it is fx, and it is already fa divided by what, h can be written as what is, how can I express h in terms of x. So इस a को इधर शिफ्ट किया जाए तो it becomes what, x minus a. So you can write x minus a. Okay, so this definition and this definition is what, same definition, but there is a some books they are using this definition, some book they are using this definition. We will use this definition more, okay, to solve the question, because it is better to that is use it, okay, and this can also be useful. Okay, you remember this also, ठीक है. तो here you see a is a point in the domain. डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, ग्राफ होगा, डोमेन है, तो डोमेन के लेफ्ट से x अप्रोच होगा, डोमेन की राइट से x अप्रोच होगा. तो इट मीन्स व्हाट, x टेंस टू a प्लस, x टेंस टू a माइनस, और x टेंस टू क्या होगा, a प्लस होगा. अंडरस्टूड. सो देयर विल बी टू डेरिवेटिव. व्हेन x टेंस टू a माइनस वी आर गेटिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. इसका इट इज दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. व्हेन x इज अप्रोचेस टू a फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम हियर वी गेट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड इट इज डिनोटेड बाय l f dash a. Okay, and when x is approaches to a from right, we can get another derivative is called right hand derivative, and it is denoted by r f dash a. R f dash a. And remember that when x tends to a minus means h tends to 0 minus, and when x tends to a plus then h tends to 0 plus. ये होगा, ठीक है. From the relation what you will get a plus h is equal to what, x. तो when x is approaches to a from left, तब h tends to क्या हो जाएगा, 0 हो जाए, 0 h tends to what, 0 minus होगा. When x is approaches to a from right, from this relation h is tends to 0 plus होगा, ठीक है.
and from here we can get two derivative, one is left hand derivative, another is what, right hand derivative. ठीक है, मीन्स इस पॉइंट में एक यूनिक टेंजेंट मिलने के लिए, सपोज दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज अनदर पॉइंट, उसको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कॉर्ड मिलेगी, इसको ज्वाइन करेंगे तो हमें एक कॉर्ड मिलेगा. हम डिटेल्स डिस्कशन थोड़ा सा बड़ा करके फिगर ड्रा करें. ओके, suppose this is the graph. Okay, this is a point and this is your A, suppose. Okay, and this is another point I am taking. Okay, this is the chord I am joining and this is another chord. Okay, now if x is approaches to A from the left, इसमें x अगर अप्रोच करेंगे तो धीरे धीरे ये पॉइंट जाके इसमें मार्ज हो जाएगा. दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R. P Q मार्ज होके क्या हो जाएगा, ये पॉइंट इधर जाएगा तो ये हमें एक टेंजेंट क्रिएट होगा, टेंजेंट होगा. एंड R इज ऑल्सो मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ मार्ज एट Q, मीन्स Q टेंड्स टू Q फ्रॉम द लेफ्ट एंड R टेंड्स टू Q फ्रॉम द राइट. मीन्स X इज अप्रोचेस टू A फ्रॉम द राइट, मीन्स R टेंड्स टू Q फ्रॉम द राइट, and x tends to A from the left, means Pu is tends to what, Q. and finally ये दोनों कॉर्ड, ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड जाके एक टेंजेंट में मार्ज हो जाएगा. दिस इज ए वन टेंजेंट हो जाएगा. ठीक है, दिस मीन व्हाट, दैट मीन्स व्हाट हैपन, ये लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव, ये x टेंस टू A माइनस, x टेंस टू A माइनस से लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव आएगी, x टेंस टू A प्लस से क्या आएगा, राइट हैंड डेराइवेटिव आएगा. ओके, राइट हैंड डेराइवेटिव. तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव मीन्स व्हाट, ये लेफ्ट जो कॉर्ड है वो बन जाएगा एक टेंजेंट और राइट एफ डैश है मीन्स व्हाट, ये जो कॉर्ड है बन जाएगा एक टेंजेंट. दोनों मिलके सेम टेंजेंट हो जाएगा और टेंजेंट में टेंजेंट का एक स्लॉप मिलेगी और ये स्लॉप का नाम क्या है, एफ डैश ए. अंडरस्टूड, स्लॉप का नाम क्या है, एफ डैश ए. अंडरस्टूड. सो एल एफ डैश का मतलब है कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ultimately becomes Pu becomes Q हो जाएगा, then it becomes a tangent at this particular point Q and there is R f dash का मतलब है x tends to A plus, at that time this chord becomes a tangent. ठीक है, Q में एक टेंजेंट रह जाएगा. तो लेफ्ट एंड में जाके टेंजेंट और राइट एंड में जाके क्या होगा, टेंजेंट. दोनों टेंजेंट क्या हो जाएगा, सेम टेंजेंट हो जाएगा. दैट मीन्स इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट व्हेन x टेंस टू A माइनस, इसका मतलब है स्लोप ऑफ ए टेंजेंट व्हेन x टेंस टू A प्लस. अब जब दोनों टेंजेंट क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा, मीन्स दोनों का स्लोप, इसका जो वैल्यू आएगा और इसका जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, ये वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट. एंड दोनों का वैल्यू जब क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ डैश ए मिल जाएगा, एक यूनिक टेंजेंट मिल जाएगा. एंड दैट यूनिक टेंजेंट का एक ही स्लोप मिलेगी एंड व्हिच इज इक्वल टू दिस वन और दैट वन. इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव, इसका नाम है लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एट द पॉइंट ए, इट इज राइट हैंड डेराइवेटिव एट द पॉइंट ए. दैट मीन्स व्हाट हैपन, लेफ्ट हैंड डेराइवेटिव एल एफ डैश ए जो है एंड आर एफ डैश ए, इसका एक एग्जिस्टेंस होगा, मीन्स इसका एक, दिस रिप्रेजेंटिंग व्हाट, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट व्हेन एक्स इज अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द लेफ्ट. ओके, मीन्स ये जो कॉर्ड है ये एक टेंजेंट हो रहा है, यहाँ में जाके टेंजेंट बन गया. ठीक है, वही बात कर रहा हूँ मैं. और फिर आर एफ डैश ए मीन्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट ए स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, मीन्स ये जो कॉर्ड जाके ये टेंजेंट बन गया. ठीक है, इस पॉइंट में, क्यू पॉइंट में टेंजेंट बन गया. तो जब टेंजेंट बन जाएगा मीन्स टेंजेंट का एक स्लोप होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, एल एफ डैश ए एग्जिस्ट कह सकते हैं. सिमिलरली आर एफ डैश ए एग्जिस्ट कह सकते हैं. और दोनों जब एक साथ मार्ज होएगा, दिस इज लेफ्ट टेंजेंट, दिस इज राइट टेंजेंट एंड दोनों मिलके एक ही टेंजेंट हो रहा है. तो जब दोनों एक ही टेंजेंट हो जाएगा, इसका मतलब है एल एफ डैश ए जो वैल्यू होगा आर एफ डैश का सेम वैल्यू होगा और दोनों मिला के क्या होगा, टेन थीटा होगा. बिकॉज इसका जो वैल्यू है फॉर ए पर्टिकुलर थीटा, इसका जो वैल्यू है फॉर ए पर्टिकुलर, दोनों थीटा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा. एंड व्हिच इज इक्वल टू योर एफ डैश ए. Understood? That means what happen,
इफ़ एफ डैश ए वांट टू बी एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट होना चाहिए तो इंडिविजुअली ये एग्जिस्ट होना होगा, ये एग्जिस्ट होना होगा और दोनों इक्वल होना होगा, तब जाके क्या होगा, एफ डैश ए विल बी एग्जिस्ट. दिस इज द आइडिया ऑफ द concept regarding f dash a exist. Means f dash a derivative of a function at a particular point have two derivative. One is left hand derivative, another is right hand derivative. Right, left hand limit and right hand limit, and left hand derivative should be exist individually, right hand derivative should be exist individually, and both should be equal. Means के क्या है, लेफ्ट से पॉइंट अगर इसमें मार्च होते हैं एक टेंजेंट मिलेगी, राइट से ये पॉइंट मार्च होगा जो द पॉइंट आर बिकम्स व्हाट क्यू, देन दिस कॉर्ड बिकम्स व्हाट ए टेंजेंट. दोनों टेंजेंट मिलके सेम एक ही टेंजेंट होगा और उसका मतलब है इट इज़ द स्लोप ऑफ द पर्टिकुलर टेंजेंट. राइट, सो आई होप आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन समझने की कोशिश करो, उस ग्राफ में जाओ, आप लोगों को समझ में आएगा. एक्स टेंस टू ए माइनस मीन्स यू आर गेटिंग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक्स टेंस टू ए प्लस मीन्स यू आर गेटिंग राइट हैंड डेरिवेटिव. और एक्स जब ए में अप्रोच हो जाएगा, पी पॉइंट क्यू में अप्रोच हो जाएगा, लेफ्ट से एक टेंजेंट मिलेगी, और एक्स इज अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट, मीन्स से द पॉइंट आर इज अप्रोचेस टू क्यू, एट दैट टाइम यू आर गेटिंग राइट हैंड साइड में एक टेंजेंट मिलेगी, और दोनों टेंजेंट जब मार्च होके एक ही टेंजेंट हो जाएगा, एंड ये टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, एफ डैश ए होगा. दैट मीन्स वी कैन से दैट एफ डैश ए एग्जिस्ट. तो एफ डैश ए एग्जिस्ट होने के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में एग्जिस्ट होना होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना होगा, और दोनों क्या होगा, इक्वल होना है. दैट इज द कंडीशन. ओके, नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. मैंने आप लोगों को कहा है एक्स टेंस टू ए माइनस मीन्स एच टेंस टू जीरो माइनस, एक्स टेंस टू ए प्लस मीन्स एच टेंस टू वर्ड जीरो प्लस. तो हमारा डेफिनेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश ए का डेफिनेशन है, राइट द डेफिनेशन, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस, आपका एक्सप्रेशन सेम रहेगा. दिस व्हाट एफ डैश ए क्या था, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच. ओके, सो इट विल बी सेम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई एच. दिस इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव. ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला जस्ट एच टेंस टू जीरो माइनस, एच टेंस टू जीरो माइनस मीन्स व्हाट, एक्स टेंस टू ए माइनस. ओके, लेकिन ये वैल्यू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, बिकॉज इफ़ आई टेक दिस ए पॉइंट, इसमें कोऑर्डिनेट लिया करो तो ये सारी चीज़ मिल जाएगी. अंडरस्टूड. एंड देन व्हाट इज द राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव इज व्हाट, आर एफ डैश ए इक्वल टू limit h tends to 0 plus f of a plus h minus f a divided by what, h. This is called right hand derivative. It is called left hand derivative. Now when f dash a exists, f dash a will be exist. There are three conditions. Condition A, L f dash a exists. The first condition, R f dash a exists, and finally number 3, L f dash a is equal to what, R f dash a. Okay, if these three conditions are satisfied, then derivative of a function at a particular point will be exist, or you can say that the function f is differentiable. Derivative means differentiable at x equal to a. Okay, the function f is differentiable at x equal to a means f dash a must be exist, and f dash a will be exist if left hand derivative exists, right hand derivative exists, both are equal. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कब मिलेगी, जब एक पॉइंट लेफ्ट से एक्स टेंस टू ए माइनस होगा, इस टाइम पे लेफ्ट हैंड से जो टेंजेंट ड्रॉ होगा, टेंजेंट मार्ज होगा, जो कॉर्ड है, जो कॉर्ड मैंने आप लोगों को फिगर में ड्रॉ किया, कॉर्ड जाके टेंजेंट बन जाएगी. और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, व्हेन एक्स टेंस टू ए माइनस ए प्लस राइट से अप्रोच होगा, उस टाइम पे जो कॉर्ड मिलेगी वो कॉर्ड जाके क्या होगा, टेंजेंट बन जाएगी, और दोनों टेंजेंट जाके एक ही टेंजेंट में क्या होगा, ऐसे एक ही टेंजेंट में मार्ज हो जाएगी, and which is representing unique tangent and means what, f dash a exist. दोनों मार्च होने का मतलब है दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा, दोनों का स्लोप इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ऐसा होगा. ठीक है,
ये कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, दोनों जाके एक ही पॉइंट में टेंजेंट हो रहा है, मतलब है दोनों का स्लोप, दोनों ने ये जो कॉर्ड बन के ये टेंजेंट हो रहा है, ये कॉर्ड जाके ये टेंजेंट हो रहा है, दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा एक्स एक्सिस के साथ, तो दोनों का स्लोप सेम होगा. दैट मीन्स व्हाट हैपन, एल एफ डैश ए इक्वल टू व्हाट, आर एफ डैश ए. ओके, एंड फाइनली this is the unit tangent on that particular point and which represent what, f dash a, if this is the a is a point in the domain. Okay, this is the idea about left hand derivative and right hand derivative, and also existence of the existence of a particular function in a particular point. Existence of derivative of a particular function at a particular point means f is differentiable at x is equal to a. So I hope that I can make you understand. This is very interesting. Regarding this, I will solve few questions in coming classes, and you will be able to understand better and better or how we can apply this particular result in problem solving. Okay. So thank you very much. Have a good day and all the best.